headlines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. আজ অর্থাৎ সোমবার জগন্নাথ প্রভুর স্নান যাত্রা। এই বিশেষ দিনে ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র এবং দেবী সুভদ্রাকে স্নান করানোর অনুষ্ঠান হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এই মহাস্নানের পর জগন্নাথ দেব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাকে 15 দিন ধরে ভেষজ আয়ুর্বেদিক উপাদানের মাধ্যমে সেবা ও চিকিৎসা করা হয়। এই সময় জগন্নাথ মন্দির বন্ধ থাকে এবং তারপর এই পর্ব শেষে রথযাত্রার দিন জগন্নাথ দেব পুনরায় ভক্তদের দর্শন দেন। তাই জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা উপলক্ষে আসানসোলের বানপুরে অবস্থিত বানপুর জগন্নাথ মন্দিরে সাড়ম্বরে পালিত হলো শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের স্নান পূর্ণিমা। এদিন 108টি কলসে পবিত্র জল, 45 ধরনের ভেষজ ও নানান পবিত্র উপাদান দিয়ে এই মহাস্নান সম্পন্ন করা হয়। এলাকারই একটি পবিত্র কূপ থেকে জল এনে ভগবান জগন্নাথকে স্নান করানো হয়। এরপর তাকে একটি বিশ্রামাগারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রথযাত্রার দিনে তিনি তার মাসির বাড়িতে যাবেন। এদিন স্নান যাত্রা উপলক্ষে মন্দিরে পুজো, আরতি, ভজন ও প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়। कुल्टी थाना क्षेत्र के डीसरगढ़ के पास दामोदर नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से 3 छात्रों की मृत्यु हो गई। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और पीड़ित परिवारों में मातम पसरा हुआ है। घटना के बारे में बताया जाता है कि नियामतपुर के एक गैर सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 8 छात्र सोमवार को स्कूल जाने के बजाय डीसरगढ़ के पास दामोदर नदी में स्नान करने चले गए थे। सबसे पहले इन छात्रों ने डीसरगढ़ स्थित दामोदर नदी के किनारे मैदान में क्रिकेट खेला और फिर दामोदर नदी में स्नान करने के लिए उतरे। बताया जाता है कि दामोदर नदी की गहराई का सही अंदाजा न होने और तैरना नहीं जानने के कारण वे अचानक अपना संतुलन खो बैठे और दामोदर नदी के गहरे पानी में डूबने लगे। साथियों को डूबता देख अन्य छात्रों ने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोग और कुल्टी थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद दामोदर नदी में डूबे तीनों छात्रों को पानी से बाहर निकाला गया। उन्हें तुरंत आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। বেআইনিভাবে বালি পাচারের অভিযোগ তুলে সোমবার সকালে পানাগড় সেনা ছাউনির 1 নম্বর গেটের সামনে বিক্ষোভে শামিল হন বিজেপির কর্মীরা। অভিযোগ, দামোদর নদ থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে ভুয়ো চালানের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে পাচার করা হচ্ছে। সরকার পরিবর্তন হলেও সেই কারবার এখনো অব্যাহত রয়েছে বলে দাবি বিজেপির। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তারা সকাল থেকেই পানাগড় সেনা ছাউনির 1 ও 5 নম্বর গেটের সামনে জড়ো হন। এরপর একের পর এক বালি বোঝাই লরি ও ডাম্পার সেখানে পৌঁছালে চালকদের কাছে বৈধ নথি দেখতে চান তারা। राज्य में सत्ता परिवर्तन और बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद तृणमूल कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आसनसोल के सालानपुर ब्लॉक के जीतपुर उत्तरामपुर पंचायत के तृणमूल कांग्रेस के उप प्रधान सूरजीत मोदक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नौकरी दिलाने के नाम पर वित्तीय धोखाधड़ी और अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोपी सूरजीत मोदक को गिरफ्तार कर पुलिस ने सोमवार को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया। यहाँ बता देना जरूरी है कि बीते दिन स्थानीय डाबर मोड़ पर उग्र जनता ने तृणमूल कांग्रेस के उप प्रधान सूरजीत मोदक को घेर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें भीड़ के चंगुल से बचाया था और रूपनारायणपुर पुलिस फांड़ी लेकर आई थी। दिन भर फांड़ी में रखने के बाद लिखित शिकायतों के आधार पर रविवार की देर रात पुलिस ने औपचारिक रूप से सूरजीत मोदक को गिरफ्तार कर लिया और सोमवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया। মতো চলে না লিফট, ভেঙে পড়েছে নিকাশি ব্যবস্থা, প্রতিবাদী হলে জুটছে বিল্ডারের হুমকি। এমন অভিযোগকে সামনে রেখে সোমবার দুর্গাপুরের বিধাননগরের টেটিখোলার কাছে এক বহুতল আবাসনের আবাসিকদের একাংশ বিক্ষোভে শামিল হলেন। কেউ দিয়েছে 30 লক্ষ, কেউ বা তারও বেশি দাম দিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছে। তবে বহুতল আবাসনের আবাসিকদের অভিযোগ, টাকা দিয়েও মেলেনি পরিষেবা, উল্টে লিফট নিকাশি ব্যবস্থা সহ বহুতল আবাসনের যে কোনো সমস্যা মেটাতে তাদের ট্যাক্সের খরচা করে
সমাধানের রাস্তা বের করতে হয়। দীপক ভট্টাচার্য নামে ওই বিল্ডারকে কিছু বলতে গেলে পাত্তা তো দেনই না, উল্টে বিল্ডার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ এবং স্থানীয় জমিদাতাদের কাছ থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগে সোমবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল দুর্গাপুর ফরিদপুরের কাঁটাবেড়িয়া এলাকার একটি বেসরকারি কারখানার নার্সারি। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে নার্সারির ভেতরে বিক্ষোভে সামিল হয় বিজেপি। পরিস্থিতি সাময়িকভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার পুলিশ। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি কারখানা নার্সারিতে স্থানীয়দের উপেক্ষা করে বিহার থেকে বহিরাগত শ্রমিক এমনকি নাবালকদেরও কাজে নিয়ে আসা হয়েছে। मौका नहीं देगी। आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक और अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले हुमायूं कबीर को राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल सोमवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में विधायक हुमायूं कबीर द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर कड़ी शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि हुमायूं कबीर के खिलाफ अलग अलग 2 FIR दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने हुमायूं कबीर को कड़े शब्दों में कहा कि वे अब धमकियां देना बंद करें। जिन लोगों ने हुमायूं कबीर को सभा में बुलाया था, पहले उन्हें उठाया जाएगा, इसके बाद उनके पास जाएंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हुमायूं कबीर को कहा कि ये उनका आखिरी बयान है। अब भविष्य में इस तरह से हुमायूं कबीर को बेलगाम बयानबाजी करने नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा और हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि राजनीति में नेता भले ही अपने वादे भूल जाएं, लेकिन जनता कभी कभी अपनी बात की इतनी पक्की निकलती है कि लोग भी दंग रह जाते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हिंगलगंज इलाके के एक व्यक्ति ने बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा की जीत को लेकर एक सरेआम बड़ी चुनौती दे डाली थी। उस व्यक्ति का साफ कहना था कि अगर रेखा पात्रा चुनाव जीत गई तो वह अपना सिर मुड़वाकर और चेहरे पर अलकतरा मलकर 2 महीने तक घूमेगा। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो न सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने अपनी सीट पर जीत दर्ज की, बल्कि राज्य में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई। रविवार दोपहर 2 बजे से लेकर 9 बजे तक पश्चिम बंगाल सरकार के PWD और PHE विभाग के मंत्री तथा कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार रानीगंज शहर में अपना समय विभिन्न सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के बीच व्यतीत किया। इस दिन दोपहर मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार शहर के तिलक रोड स्थित अपने कुल देवी के मंदिर पहुंचे, जहां पर उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने भव्य रूप से उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार अपने ससुराल राजेश गनेरीवाल और अपने साजी महेश खेड़िया के निवास स्थान पर समय व्यतीत किया। इसके पश्चात शाम 4 बजे अपने अन्य रिश्तेदार राजेंद्र प्रसाद चौधरी के घर पहुंचे। राज्य के PWD और PHE विभाग के मंत्री एवं कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार रानीगंज शहर के NSB रोड स्थित सुप्रसिद्ध श्री श्याम मंदिर पहुंचे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद डॉक्टर अजय पोद्दार का श्री श्याम बाबा के दरबार में यह पहला आगमन था। इस पावन अवसर पर उन्होंने अपनी पत्नी सरोज पोद्दार के साथ श्री श्याम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई, विधिवत पूजा अर्चना की और चौखट पर मत्था टेक कर पूरे राज्य में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.